Felicitation ceremony for the Mahasau Super 30 and MAD Prep candidates. On Wednesday, a proud moment unfolded for the Mahasau as celebrated the achievements of successful candidates from the Mahasau Super 30 and MAD Prep programs alongside those who excelled in the recent NEET examination. The ceremony took place at the Mahasau Autonomous Council Guest House. It was truly inspiring to honor these young achievers whose dedication and hard work have brought pride to the district. Heartfelt congratulations to each of them. May their success inspire countless others to dream big and reach greater heights. Hey everyone, today I joined the felicitation program of the Mahasau Med program with my mother. I would like to share with everyone with great joy that I got into a seat in the medical college, which is a very good thing for me and my family. Uh, the credit goes all to our honorable CM sir and the Super 30 Med Prem program. And मैं अपनी जूनियर और अभी जो सेकंड बैच है सुपर 30 का जो मैथ प्रेड प्रोग्राम का उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी एक स्मॉल एडवाइस कि आप कंसिस्टेंट रहे। आप अगर ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर आप ज़रूर अपना सक्सेसफुल होगे। सो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गुड इवनिंग। How you come to know Super 30 is giving provided this type of facilities for the students? सॉरी आपको कैसे पता चला कि Super 30 में इस तरह सब को फैसिलिटीज दिया जा रहा है? कैसे पता चला? ये सब सर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था तो And when you joined सुपर 30 में मैंने 2024 में अराउंड जुलाई 15 को हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था और उससे पहले हमने हाफलोंग में जून 31 को यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और इसे ही देखे हमको कौन सा स्कूल से? मैं स्कूलिंग तो मैंने प्रणवानंदा मीडियम एज से किया था और कॉलेज मैंने कॉटन यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है HS। आप क्या सोच रहे हैं आगे जाके क्या सोच रहे हैं आफ्टर डॉक्टर बिकमिंग आफ्टर ऑल यू विल बिकम द डॉक्टर या यस एंड अब क्या सोच रहा है क्या आगे जाके कैसा करेगा क्या करेंगे so how you want to serve the people of Himachal as a same sir is already not forget the root या मैं बाहर तो नहीं जाना चाहूँगी। आई लाइक टू सर्व माई पीपल इन दिमा हसाओ। अगर फ्यूचर में अगर दिमा हसाओ में हॉस्पिटल्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का जो पीपल है दिमा हसाओ में वो लोग ही सर्व करेंगे एज ए डॉक्टर। तो मैं बाहर तो नहीं जाऊँगी। तो ये नीट के लिए नीट क्वालिफाई करके I got into Jorhat Medical College. You're from which place? I'm from Haflong and it was my first attempt. I gave boards this year. Then directly I gave NEET from an institute called Sai Vikas in Guwahati. Then from there I got qualified and then I got into Jorhat Medical College. What's your name? My name is Anari Thausen and it was my first time actually. First attempt. Yeah, first attempt and then I got cleared. School? Sai Vikas Vidyaniketan from Guwahati. you had first attempt this is the Yes, this is my first attempt. What is your experience? experience कैसा था? Experience I thought it was very hectic in the starting of my first year, but then in the second year as I adapted to the hostel schedules and for the students there who excel in marks, there's a separate section for each of them who do well in the weekend exams which is held on every Sunday. They shuffle that students and they make a separate section with various elite teachers of the institute. Then they do classes there. What is your key point for this my, success? my key point is that you should not lose hope and always maintain your consistency and not to do not relax at any When point. consistency maintains. Yeah. डॉक्टर बनने का क्या क्यों है डॉक्टर बनने में Actually, this thing started when I was in class 10 and I realized that the thing which most excited me was that science subject, and after it I read
while reading bio, I used to be very fascinated of all the things which used to be in the books. Then I became more fond of what like I studied in class 11 and 12, and they have like scope for JE and NEET. So I chose NEET, and from there I want to excel more in the knowing of the human body parts and to help the people out there. Thank you very much. बस आपको यहाँ पे क्या दिया गया और किस लिए दिया गया? एक्चुअली आज जो जो नीट में मिला था वो लोग का फेलिसिटेशन हो रहा था, सो सीएम लोग हमको लाइक 20,000 ईच दिया था फॉर एवरीवन। जिसने क्लियर किया था उसको सबको दिया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसमें आपका बूस्ट अप होगा क्या एनर्जी आपको इस पर आएंगे? या एक्चुअली जो उसने बोला था द एडवाइस ही गिव बहुत अच्छा लगा। एंड देन विल कैरियर ऑन दैट। yeah, in the future I'll try to like do whatever he said, like never forget the roots, and then yeah, that's it. In a media interaction, Chief Executive Member Gorlosa extended his best wishes to the candidates as they embark on their new journeys. He emphasized the Council's unwavering support for the Mahasau's youth in pursuing higher education, noting that these efforts are now yielding remarkable results. देखिए, हम लोग दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल सब हमको दायित्व दिया है दिमा हसाओ का जनता और पार्टी ने, और हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जिस दिन हमको दायित्व दिया है तो दिमा हसाओ का फ्यूचर भविष्य सोच के काम करना है बोल के डायरेक्शन है। तो उसी हिसाब से दिमा हसाओ का भविष्य अच्छा करेगा तो हम लोग का नंबर 1 एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन के लिए हम लोग जरूर पूरा काम किया है, जरूर लगा के पूरा काम किया है। काम करने का बाद में हम लोग देखा है कि दिमा हसाओ का बच्चा लोग माने मेडिकल एंट्रेंस में नीट में हो या एपीएससी में हो यूपीएससी में हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो हम लोग मिल सकता बोल के हम लोग कुछ माने देख सका है कि टैलेंटेड है बोल के हम लोग माने 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 जहाँ जगह पे हम लोग देख सका है। तो इसीलिए हम लोग सोच विचार हम लोगों का आसाम सरकार तो मेरिट बेसिस में एग्जाम होते ही है, और साथ में दिमा हसाओ का भी हम लोग कोचिंग सेंटर और अपना स्कूल लेवल में, और जैसे कि फाइनेंशियली जैसे कि कोई कोई नौकरी करता है उनका सैलरी सिस्टम भी हम लोग अच्छा से गवर्नमेंट देके आया है। तो वो लोग भी अपना घर का लेवल में भी कोई कोचिंग में हो, पढ़ाई में हो, स्कूल भेजना में हो, वो लोग भी अच्छा हो गया आस्ते आस्ते। उसके बाद में हम लोग भी अपना सुपर 30 दिमा हसाओ क्योंकि 2 साल हुआ है। दिमा हसाओ एसपी मयंक कुमार और जीपी सिंह आईपीएस ऑफिसर अभी पहले डीजीपी था, और बाकी दूसरा आईएएस आईपीएस और जितने भी दिमा हसाओ का रिटायर ऑफिसर लोग है यूपीएससी एपीएससी का हमको बहुत मदद किया है। और हम लोग भी चाहता है कि दिमा हसाओ सुपर 30 से यूपीएससी एपीएससी में भी मिलो, और अभी एपीएससी में मिला है और यूपीएससी में मिलना बाकी है, और अभी मेडिकल में भी मिल गया है। तो इसी तरह से हम लोग हर साल पैसा खर्चा करके कोचिंग सेंटर किया है, तो उसमें हम लोग ये रिजल्ट देखने मिला है। और हम आशा करता दिमा हसाओ में जितना भी इंडस्ट्री आएगा, शायद पावर का हो, शायद सीमेंट फैक्ट्री का हो, उसी लाइन में भी हम लोग क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से बच्चा लोग उसी इंडस्ट्री एरिया में नौकरी मिल सकेगा, शायद प्राइवेट में हो शायद गवर्नमेंट में हो। तो इसी हिसाब से हम लोग काम करना है। पहले हम लोग बहुत दिमा हसाओ में तकलीफ मेहनत सब लोग भी हुआ है। अभी तकलीफ मेहनत इतना करना जरूरी नहीं है कि फारो और गुवाहाटी में हम लोग हॉस्टल बनाया है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, दिल्ली भी बना रहा है, और यहाँ पे सुपर 30 हम लोग किया है। तो कितना तो हम लोग का जोया 1000 गर्ल्स हॉस्टल से मिला है, और अभी भी बॉयज़ हॉस्टल से भी मिलेगा। और ऐसा मापे अभी हम लोग पूरा स्टूडेंट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा लोग जो भी बोलो, अभी दिमा हसाओ आसाम में एजुकेशन में टॉप 5 में हम लोग 4 साल कंटिन्यू वो नंबर हासिल किया है। पहले लास्ट में हम लोग का दिमा हसाओ रिजल्ट होता रहा, जो भी अच्छा चीज में अभी अच्छा चीज में हम लोग अभी टॉप में है। पहले तो लास्ट होता रहा, अभी टॉप में है। अपोजिशन जो भी बोलो, लेकिन हम इसलिए डर नहीं है क्योंकि मेरा साथ अभी कम से कम मेडिकल स्टूडेंट सेंचुरी होने वाला 80 प्लस हो गया है। और उसके बाद में एपीएससी में जो लोग मिला है वो भी
80+ हो गया है। अभी पढ़ाने वाला साथ मिलके करने वाला लगभग 2000 जैसे ज़्यादा है हम लोग का स्टूडेंट। तो ये सब पूरा हमको आशीर्वाद देता है। हम पूरा विश्वास है उन लोग को लेके हम लोग काम करना है, और हम आने वाला दिन में भी आशा रखता है कि दिमा हसाओ से और भी यूपीएससी, एपीएससी, नीट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असम में जो मेरिट बेसिस में जो नौकरी देना शुरू किया है बीजेपी गवर्नमेंट हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, तब सबसे लाभ ट्राइबल एरिया में दिमा हसाओ में हुआ है। दूसरा लोग जो भी बोलो दिमा हसाओ के लिए अभी ऐसा वाला अच्छा दिन, अच्छे समय अभी बीजेपी समय में, बीजेपी गवर्नमेंट में आया है। सर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, जो जितना डॉक्टर्स अभी पढ़ने को मिला डिमा हासाओ को सर्व करेगा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन? हम उसमें भी रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम 5 साल 10 साल तो दिमा हसाओ का लोग को सेवा करना है, क्योंकि दिमा हसाओ को में दूसरा सब लोग आने नहीं मांगता है कि थोड़ा दूर पड़ जाता, अभी तो आने मांगता है, लेकिन कुछ कुछ जो लाइन पढ़ता है दिमा हसाओ में पोस्टिंग नहीं होता, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने वाला यहाँ पे नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन दूसरा असम, ऑल असम में करो और दिल्ली में, ऑल इंडिया में करो, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट का भी वो लोग 5 साल 10 साल तो सेवा करेगा बोल के मैं आशा हूँ। और हम तो इतना दिल बड़ा है कि अभी कई असम में 3 साल 5 साल बाद में हम लोग कोई बीमारी अगर पड़ गया तो जाने से हम लोग अपना दिमा हसाओ का डॉक्टर लोगों को हम लोग मिलेगा, और दूसरा ऑफिसर में भी हम लोग मिलता है, पुलिस में भी मिलता है, क्योंकि ये समय ये सब पहले नहीं होता था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का लीडरशिप में भी ये सब पूरा हासिल हुआ है, सक्सेस हुआ है। क्योंकि दिमा हसाओ कमी नहीं है, हम पहले भी बोलते हैं हाँ वही दिमा हसाओ का बच्चा लोग कमी नहीं है, दिमा हसाओ लोग का टैलेंट का कमी नहीं है। इसलिए फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर एसटी का दिमा हसाओ से बना जिसी नाम पे, और यहाँ से डायरेक्ट आईएएस मिलने वाला 9 से 10 15 डायरेक्ट आईएएस मिला है, इतना छोटा पॉपुलेशन में। और उस टाइम में एजुकेशन का माने बहुत खराब था, तो अभी एजुकेशन बहुत हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, अभी एजुकेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया। हम ये नहीं बोलते पूरा 100% अच्छा हो गया, हम नहीं बोलते, थोड़ा सा अभी अच्छा हो गया। अभी रिजल्ट देखिए असम में कितना फ्लेंस डिस्ट्रिक्ट, कितना डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, टॉप 5 में हम लोग ये नंबर लेना दमाली नहीं है। दूसरा लोग जो भी बोलो, मेरा गवर्नमेंट 9 साल में ये हासिल किया है, तेरे कांग्रेस समय में 60 इयर्स में लास्ट नंबर ही हासिल कर सका वो लोग। हाँ, ये मेरा सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट में ये टॉप 5 में रहा, और ट्राइबल एरिया में नेक्स्ट नंबर में हम लोग नौकरी मिला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेडिकल कॉलेज में हो या एपीएससी में हो, तो ये सक्सेस फर्स्ट टाइम है ये। और डायरेक्ट सीएम ईएम ऐसा साथ देने वाला अभी गवर्नमेंट ने किया है। थैंक यू। आपका मैसेज मतलब रूट को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, हम उन लोग को भी बोला है कि आप लोग एसटी हिल्स कोटा में नौकरी मिला है तो एसटी हिल्स का कभी नहीं बोलना है। हाँ, लोग एसटी हिल्स का, लोग का, समाज का, भाषा का, हाँ सुविधा होता हाँ, जो भी तुम एसटी हिल्स होके तुम डॉक्टर मिला, तुम आने में एसटी हिल होके भी आने लगेगा, हम तो वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि रूट नहीं बोलना है। हाँ, हम अभी सीएम बन गया, हम दियांगी को बोलने से कैसा होगा, हम माईबंग को बोलने से कैसे होगा। हम सीएम बन गया, हम दिल्ली में गुवाहाटी में अपना बच्चा बेटी को पढ़ाने से नहीं होगा। हमारा ड्यूटी क्या है, तो ये भी जो मेडिकल स्टूडेंट में हो एपीएससी में, हम वही बोलता है कि आप एसटी हिल्स में नौकरी मिला है तो एसटी हिल्स होके आप मरने में भी एसटी हिल्स होके मरना होगा, वही नियम करके हम तो वही मैसेज देना चाहते हैं।